So there are two types of electrochemical cells, galvanic cells and electrolytic cells. Okay. What are galvanic cells? Galvanic cells are devices which convert chemical energy to electrical energy. Okay. Or galvanic cells are devices which use a spontaneous Sir, will you be writing it down? what? सर आप स्क्रीन पे लिखोगे क्या डेफिनेशन? दिख नहीं रही है. Screen is blank, sir. Sir, your screen is not visible. White screen. Yes, sir. हाँ सर अभी आया. Galvanic cells are devices which use a spontaneous redox reaction to produce electricity. Okay. Electrolytic cells are exactly opposite of it. इतना नोट करो. सर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के लिए सर आपने डिवाइस which is used as spontaneous उसी तक हमें देखता है. हाँ हाँ अभी सर हाँ अभी आया.
हो गया नोट? 1 second sir. Done, sir. Okay. So let's start with galvanic cells. And first of all, let's understand the design of galvanic cell. How we will construct our galvanic cell. Can you see the screen now? Yes Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Galvanic cell का दिख रहा है? Galvanic cells. So galvanic cell में we will use a spontaneous redox reaction to produce electricity. Okay, this is our aim. So first of all, let's select a spontaneous redox reaction. Let's say we take this reaction. Okay, So we can't see. just wait 1 minute. Wait. Yes, sir. Now I think it is visible to everybody. Yes sir. So now let's say we select this redox reaction. And our aim is to use this redox reaction to produce electricity. How we will be producing electricity? There are two parts in this redox reaction. एक तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है और ये रिडक्शन हो रहा है इसमें, करेक्ट? Yes, sir. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो हमें अचीव कराना है एक एक्सटर्नल वायर में। एंड इफ वी कुड डू दैट, वी हैव प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब कैसे डिजाइन करें गैल्वेनिक सेल? सर आपकी आवाज क्रैक हुई थी शायद। तो इफ वी टेक अ वेरी बेसिक डिजाइन, लेट्स से बीकर लिया और इसमें
we put a solution of Cu2 plus ions, correct? और फिर we dip a plate in this solution. Of zinc. अब एक वायर जिंक प्लेट से अटैच करा, और दूसरा एंड यहाँ सोल्यूशन में डिप कर दिया। अब जिंक प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगी। Yes, sir. Zinc atoms will become zinc ion and leave behind their electron on the plate, correct? Yes, sir. और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को कंज्यूम करने हैं, correct? Yes, sir. तो वी वांट कि वो इलेक्ट्रॉन से इस वायर से फ्लो होके यहाँ पे चले जाएं और कॉपर आयन उनको ले ले, करेक्ट? Yes, sir. And we can observe flow of electricity in the wire. But when we practically make this connection, और लेट्स से वायर में हमने कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस अटैच की, या वायर में अमीटर अटैच किया, we will find that no current flows through the wire. Okay? क्यों ऐसा होगा? जिंक प्लेट पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन बने, और उन इलेक्ट्रॉन को कौन कंज्यूम करने वाला है? Cu2 Cu2 plus. plus. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको Cu2 प्लस कंज्यूम करने वाला है, and we want that these electrons should flow through the wire and go to Cu2 plus. But why these electrons will take such a long route? भाई ये इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्टली जिंक की सरफेस पे ही कॉपर के पास जा सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ, sir. जिंक प्लेट तो कॉपर आयंस के सॉल्यूशन में ही डिप्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स will not flow through an external wire to reach to copper ion. वो डायरेक्टली सरफेस पे ही एक्सचेंज हो जाएगा। ओके? यस सर। Yes. तो हमें एक्सटर्नल वायर में करंट नहीं मिलेगी। Hence, this design is not working. ओके? तो अब हम लोग गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं? इस डिजाइन की दिक्कत समझ में आ गई क्या? Yes. Yes, sir. सर वो Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन मतलब उसको मिल तो जा रहे हैं ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तो इससे करंट बनाना था ना। हाँ हाँ, यस सर। तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो। अगर यहाँ से फ्लो नहीं हुए इलेक्ट्रॉन तो करंट कहाँ मिला? हाँ सर, गॉट इट। तो हाउ वी एक्चुअली मेक अ गैल्वेनिक सेल? हम लोग दो बीकर्स लेते हैं, ये पहला बीकर,
ये दूसरा बीकर, और इस हर बीकर को हम कहते हैं हाफ सेल। तो पहले बीकर में हम लोग जिंक आयन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें एक जिंक प्लेट को डिप करते हैं। दूसरे बीकर में हम लोग कॉपर आयन का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें एक कॉपर की प्लेट डिप करते हैं, और इन दोनों प्लेट्स को हम लोग एक वायर से एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं। And this becomes a galvanic cell. तो लेफ्ट वाले बीकर में जिंक एटम ऑक्सीडाइज होगा, Zn will go to Zn2 plus and 2 electrons. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पे भी ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। तो ये एनोड हो गया। सिमिलरली दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होगा, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। और जहां पे रिडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैथोड। तो इस गैल्वेनिक सेल में एनोड पे जिंक एटम्स ऑक्सीडाइज होंगे, जिंक आयन बनेंगे। जिंक आयन तो बनने के बाद सॉल्यूशन में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे छूट जाएंगे। मतलब एनोड में ये जो जिंक प्लेट है, दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, और उसी तरह कैथोड में कॉपर आयन कॉपर प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर एटम बनते रहेंगे। तो कॉपर प्लेट पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एंड हेंस कैथोड की कॉपर प्लेट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ओके, क्लियर है ये? Yes, sir. सर तो फिर ये वायर का क्या यूज था मतलब? हाँ, तो अब कैथोड की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, हाँ एनोड की प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है। यस जैसे ही इन दो प्लेट्स को हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे, electrons will start to flow from zinc plate to copper plate। हाँ यानी इस वायर से चार्ज फ्लो होने लग गया। यस चार्ज फ्लो होने लग गया मतलब करंट फ्लो हो रहा है। हाँ सर सर वो जो सॉल्यूशन में था वो जिंक और कॉपर का ही रहता है। जिसकी प्लेट है उसका सोल्यूशन है। ओके ओके।
सर दोनों जो प्लेट्स है वो पानी के प्रॉपर्ली अंदर सबमर्ज रहना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं है, थोड़ा पार्ट भी सबमर्ज हो तो चलेगा। ओके सर। सर पर ऐसा क्यों नहीं होता कि जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन वो जिंक का ही सोल्यूशन कंज्यूम कर लेगा? भाई जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जिंक आयन कैसे कंज्यूम कर सकता है? यहाँ तो रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक एटम्स आयंस बन रहे हैं ना। हाँ ठीक है। जिंक मेटल है ना, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, करेक्ट। हाँ यस सर। अब इस तरह कॉपर भी मेटल है, कॉपर में भी ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, उसकी भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। लेकिन जिंक एक स्ट्रॉन्गर मेटल है, अगर जिंक के साथ कनेक्ट किया है कॉपर को तो कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जिंक में होगा ना। हाँ ओके सर। अब एक और अटैचमेंट इसमें लगाते हैं। तो दोनों सॉल्यूशन में एक यू शेप का टेस्ट ट्यूब डिप करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। सर किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? पहला तो इट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो दीज आर द रोल्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। पहला तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करेगा, दूसरा रोल it will maintain the electrical neutrality of both the solutions, और तीसरा रोल it prevents liquid junction potential drop। क्या ऐसे ये सब हो रहा है? This potential difference developed at the junction of two solutions is known as liquid junction potential or diffusion potential, the magnitude which depends upon the relative speed. Okay, ये कैसे कर रहा है? Let's see that। तो सॉल्ट ब्रिज में देखो कैथोड में क्या रिएक्शन हो रहा है बताओ। रिडक्शन। रिडक्शन। तो क्या चीज कंज्यूम हो रही है कैथोड में? इलेक्ट्रॉन्स। Electron. और
कॉपर आयन, यस सर। कॉपर आयन पहले सॉल्यूशन में डाले होंगे ना, हाँ सर। कैसे डाले होंगे? पानी में कॉपर का कोई सॉल्ट डिसॉल्व किया होगा, करेक्ट? यस सर। हाँ सर। यस। लेट से कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया, तो स्टार्टिंग में हमने 1 लीटर पानी में 1 मोल कॉपर सल्फेट डिसॉल्व किया था। मतलब स्टार्टिंग में पानी में 1 मोल कॉपर आयन होंगे, 1 मोल सल्फेट आयन होंगे। ओके, यस सर। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगा, कॉपर आयंस का अमाउंट तो पानी में कम होने लग जाएगा, यस और नो? यस सर। लेकिन सल्फेट आयन का तो अभी तक, सल्फेट को तो कुछ होगा नहीं, करेक्ट? यस। मतलब सल्फेट 1 मोल ही रहेगा, कॉपर आयन 1 मोल से कम हो जाएगा। ओके, यस सर। यस। so I can say, so I can say that solution is becoming negatively charged. यस सर। And negative charge attracts positive charge. तो कैथोड वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, तो वो अगले पॉजिटिव चार्ज को अपने पास से जाने नहीं देगा, वो अगले कॉपर आयन को जाने नहीं देगा। और बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन से अगर करो तो एनोड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगा, करेक्ट? यस सर। एनोड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगा, तो वो अपने अंदर और पॉजिटिव चार्जेस को आने नहीं देगा, हाँ। करेक्ट? यस। तो ये दोनों सॉल्यूशन जो थे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहे थे, और उनके इलेक्ट्रिकली चार्ज होने से क्या हो रहा था? हमारे इलेक्ट्रॉन्स का हमारे रिएक्शन में आयन के फ्लो पे रेस्ट्रिक्शन आ रही थी, रिएक्शन रुक रहा था। कैथोड वाला सॉल्यूशन कॉपर आयन को जाने नहीं देगा, और एनोड वाला सॉल्यूशन जिंक आयन को आने नहीं दे रहा था, करेक्ट? यस सर। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई? एक एनोड का सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कैथोड का सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। तो द इजीएस्ट वे आउट वी थिंक इज कि अगर हम लोग कोई आयनिक सॉल्ट ले और उसका कैटायन एक बीकर में भेज दें, एनायन एक बीकर में भेज दें, तो आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, करेक्ट? यस सर। भाई अगर सपोज मैंने KCl लिया, अब KCl में I take KCl, KCl is a highly ionic salt, क्या होंगे उसमें? Yes. K प्लस और Cl माइनस आयन, करेक्ट? यस सर। एनोड वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो हाँ। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। यस सर। ये क्लोरीन आयन को अट्रैक्ट करता है, तो क्लोरीन आयन इसकी ओर मूव करने लग जाते हैं, करेक्ट? यस। तो क्लोरीन आयन अगर यहाँ से सॉल्यूशन में चले गए तो फिर से ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया ना। हाँ सर। यस सर। और सिमिलरली राइट वाला सॉल्यूशन क्या हो रहा था? नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो वो पोटेशियम को अपनी ओर पुल करेगा, ठीक है? यस। और पोटेशियम आयन उससे इस सॉल्यूशन में चले गए, तो ये सॉल्यूशन भी न्यूट्रल हो गया, करेक्ट? बट सर वो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो चलेगा।
हैं? सर वो K प्लस पॉजिटिव है ना, वो Cu2 प्लस के पास जा रहा है, तो न्यूट्रल कैसे होगा? सल्फेट भी तो है उसमें। अच्छा, यस सर, यस। तो अब हम लोग को KCl रखना है यार। अब KCl कैसे रखें? अगर सॉलिड KCl रख देंगे तो K प्लस और Cl माइनस एक लैटिस में होंगे, हाँ, यस उनको फ्री मूवमेंट अलाउड ही नहीं होगी। करेक्ट? यस सर। अगर पानी में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन रख देंगे तो जैसे ही रखेंगे वैसे ही सब कुछ फ्लो कर जाएगा, तब हम रोक थोड़ी नहीं पाएंगे। करेक्ट? यस यस तो सॉल्ट ब्रिज में हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज में हम पहले एक जेल पूरा भरते हैं। सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स the gel base having an a highly ionic salt। तो जेल क्या होता है? जेल मूवमेंट अलाउ करेगा लेकिन फ्री फ्लो अलाउ नहीं करेगा। ओके? यस तो इससे हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम दूर हो गई, दैट वाज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। अब अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें, यू नो करंट फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट। ओके? यस इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हो रहे हैं? कॉपर प्लेट, जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ यस सर। करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? कॉपर जिंक कॉपर टू जिंक करंट फ्लो हुआ। सही है? यस सर। अब जिंक प्लेट से जिंक आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं। करेक्ट? हाँ पॉजिटिव चार्ज जा रहा है जिंक प्लेट से, तो आई कैन से the current is flowing from zinc plate to the solution। सही है? यस सर। फिर सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो वी कैन से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सॉल्ट ब्रिज। यस सर। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर पॉजिटिव चार्जेस राइट में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट में, तो आई कैन से सॉल्ट ब्रिज के अंदर करंट इज फ्लोइंग in this direction। करेक्ट? यस सर। ये दोनों क्लियर है? ये यस Could you हाँ repeat I से आप क्या बताना चाह रहे हो? करंट यार, आई इज करंट। Sorry sir. फिर पॉजिटिव चार्जेस सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, मींस करंट इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज इन दिस सॉल्यूशन। यस और फिर कॉपर आयन से सॉल्यूशन से प्लेट में जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मतलब करंट इज गोइंग करंट। from the plate to the from the solution to copper plate। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कंप्लीट हो गया। करेक्ट? यस सर। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं? तो पहली कंडीशन तो है इट शुड बी हाईली आयनिक। करेक्ट? दूसरा, मोबिलिटी ऑफ cation and anion should be comparable।
भाई दोनों आयंस को जेल से मूव करना है ना, जेल के थ्रू। अगर एक आयन बहुत स्लो मूव कर रहा है, एक बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो हमारा काम नहीं चलेगा। वी शुड हैव बोथ द आयंस मूविंग विद सेम रेट, करेक्ट, विद सेम स्पीड। ओके, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट, जो सॉल्ट यूज करोगे सॉल्ट ब्रिज में, उसके आयन ऑफ सॉल्ट शुड नॉट प्रेसिपिटेट और कॉम्प्लेक्स से with ions involved in redox reaction. Okay, तो redox reaction में जो ions involved हैं, उनके साथ कोई प्रेसिपिटेट या कॉम्प्लेक्स ना बनाए सॉल्ट ब्रिज के आयन। ओके, Should not. Sir, should not, no? Should not, okay. Kinds of should not. Sir, complex set क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पढ़े थे आगे कि इक्विलिब्रियम में कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम। अच्छा वो Hello, sir. हाँ बोलो Sir, I have a doubt on the previous page. बोलो। सर वो जो आपने K प्लस दिखाया है ना, जो Cu2 प्लस में जा रहा है, तो वो K प्लस वो सोल्यूशन में जाने के बाद रिड्यूस सॉरी रिड्यूस नहीं हो सकता? कौन रिड्यूस करेगा उसे? सर जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो K प्लस में ऐड नहीं हो सकता क्या? कॉपर और पोटेशियम में स्ट्रॉन्गर मेटल कौन है? कॉपर, पोटेशियम। दोनों ही बोल दिए तुमने तो। नहीं, पोटेशियम सर। पोटेशियम स्ट्रॉन्गर मेटल है तो उसके कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हाँ सर। जब तक कॉपर पड़ा है पोटेशियम कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ओके सर। तो सर आप कह रहे थे कि कॉपर की ज्यादा रिडक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए कॉपर ही रिड्यूस होगा और पोटेशियम को कुछ नहीं होगा। यस, लेकिन सर थोड़ा परसेंटेज तो फिर पोटेशियम भी हो सकता है ना, मतलब रिड्यूस के प्लस के। उस बीकर में आया क्यों है? बीकर में आया ही नहीं। पोटेशियम बीकर में क्यों आया है? न्यूट्रल कर दे। क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो चुका है और वो सॉल्यूशन अब नेगेटिवली चार्ज है। ओके, जब तक रिडक्शन हुआ नहीं तब तक तो पोटेशियम आएगा ही नहीं। अच्छा, इसलिए फिर सर आप कह रहे थे कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कॉपर आयन कुछ चले गए सॉल्यूशन से, यस सर। तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। करेक्ट? यस सर। इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सर आपने बोला था कि कॉपर के सोल्यूशन में वो कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, मतलब सल्फेट आयन्स हो सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए
पोटेशियम के आयंस यूज किए जाते हैं, तो जिंक के इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आएगा ना, तो सल्फेट आयंस और क्लोरीन आयंस एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे अगर क्लोरीन आयंस आ गए तो बाद में? Look, मतलब I am amazed how you are talking. जिंक सल्फेट डाला पहले, ठीक है, यस सर। 1 मोल, तो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। अभी क्या तुम लोग ने आज तक ऐसी बातें करी क्या कि सर आधा मोल सल्फेट बचे हुए आधे मोल सल्फेट को रिपेल करेगा? करेगा क्या ये रिपेल? नहीं सर। नहीं करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा 1 मोल, तभी तो आयनिक सॉल्ट बनता है। ओके सर। अब जिंक यहाँ पे ज्यादा हो गया, 0.1 मोल जिंक और आ गया, उसको बैलेंस करने के लिए क्लोरीन आ गया। ओके सर। भाई टोटल कैटायन और एनायन को बराबर रखना पड़ता है ना सॉल्यूशन में। हाँ सर, यस सर, बराबर। सर हाँ सर आप 1 मिनट वो वाले पेज पे आओगे? सर वो, हाँ सर इसमें वो मतलब जो Zn वाला है सर, उसमें वो लोग ने Zn का प्लेट पहले से रखा हुआ है, और जो Cu वाला सोल्यूशन है उसमें Cu2 प्लस आयंस पहले से है, तो फिर उधर से हम Cu ऐसे बन रहे हैं वो प्लेट पे। क्या नहीं, जिंक की प्लेट भी है उधर पहले से। जैसे जिंक में तो प्लेट है पहले से, लेकिन जो Cu वाला केस है उसमें पहले Cu2 प्लस आयंस चाहिए रहेंगे ना, तभी वो प्लेट पे जाके यार ये जिंक वाले में शुरू से जिंक की प्लेट है और जिंक के आयंस है, दोनों हाँ। ठीक। अच्छा, और कॉपर कॉपर वाले? भी कॉपर के आयंस है, कॉपर की प्लेट है, दोनों ठीक। ओके सर, ओके। सर वो सॉल्ट ब्रिज में जेल बेस की होता है, उसके बारे में आपने एक पॉइंट बोला था, वो रिपीट कर सकते हो? फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम आयनिक सॉलिड को सॉलिड फॉर्म में तो रख नहीं सकते हैं भाई, लैटिस फॉर्म में रख दिया तो आयंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए, और एक्वस फॉर्म में रख दिया तो आयंस आर कंप्लीटली फ्री। हमें दोनों चीजें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक रिस्ट्रिक्टेड फ्लो, कि मतलब जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल मिले उतना फ्लो करे। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन एक वैलिड आ सकता है कि सर इसमें ये जिंक आयन पहले से क्यों लिया, इसे लेने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? इस जिंक आयन को लेने से कोई फायदा हो रहा है? नो सर, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि फायदा हो रहा है, बिकॉज जिंक इवेंचुअली ऑक्सीडाइज होके Zn2 प्लस तो दे ही रहा है। करेक्ट, और हम पहले से Zn2 प्लस डालें तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल से एक्चुअली हम अपने ही रिएक्शन को और बैकवर्ड पुश कर रहे हैं। यस सर। यस सर। करेक्ट, तो फिर जिंक आयन क्यों डाला हुआ है? और उसी तरह कैथोड में तो हमें क्या रिएक्टेंट चाहिए? उधर तो Cu2 प्लस ही चाहिए रहेगा ना, तो Cu2+ Cu हमारा बनेगा प्लेट पे वो इलेक्ट्रॉन्स को। Cu2 प्लस चाहिए, प्लेट तो बनेगा, फिर भी हमने प्लेट क्यों पहले से लगाई है? हाँ सर, वही डाउट। ये बताओ। वहाँ पे डिपॉजिट होने के लिए। डिपॉजिट तो वायर पे भी हो सकता था, कॉपर की प्लेट लगाने की क्या जरूरत थी?
तो इसको ऐसे सोचो कि अभी जिंक और कॉपर दो हाफ सेल तुमने कनेक्ट किए, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन, करेक्ट? यस सर। जिंक में ही ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज जिंक इज स्ट्रॉन्गर है मेटल। स्ट्रॉन्गर मेटल। करेक्ट। अगर मैं इस जिंक हाफ सेल को इसी तरह एक सोडियम हाफ सेल से कनेक्ट कर देता, तब क्या होता? सोडियम का ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन। सोडियम पे ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्गर मेटल देन जिंक, करेक्ट? यस। तो ऐसे केस में फिर ऑक्सीडेशन सोडियम में होता है और जिंक में रिडक्शन होता है। अब जिंक में रिडक्शन होता तो I would need Zn2 plus ions and I will not need the plate, correct? Yes. अब तो जिंक हाफ सेल में रिएक्शन होता है, Zn2 plus goes to Zn, correct? Yes sir. Then I will need the plate, then I will need zinc ion and I will not need the plate. Yes sir. अब एक जिंक हाफ सेल जब बना रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं मालूम ना हम इसको किस और हाफ सेल से कनेक्ट करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए। तो whenever we construct a half cell, we construct it in such a way that it can act both as cathode and or anode. आप समझ रहे हैं what we are saying? यस सर। Yes sir. अगर सपोज कोई मुझे पहले से बता दे कि भाई एक जिंक हाफ सेल बनाओ जिसको एक कॉपर हाफ सेल से कनेक्ट करना है, if I have that information from starting, I will never put zinc ions. I will just dip the plate of zinc in water. Okay? Yes sir. सर हाँ। सर आप सोडियम के केस में रिपीट कर सकते हो क्यों लगा Zn2 plus? Sodium is a stronger metal than zinc. Yes sir. If I connect zinc with sodium, there will be reduction in zinc. Yes sir. हाँ Reduction reaction is क्या होता है reduction reaction? the Zn2 plus 2 electrons gives Zn. Require Zn2 plus. Oh yes sir. So this is design of galvanic cell using a salt bridge. ठीक है? सर आपने वो डिजाइन ऑफ गैल्वेनिक सेल यूजिंग सॉल्ट बेस लिखा था। हाँ। ओके सर। Another way of making galvanic cell is instead of 2 beaker, we take only 1 beaker. But we have a porous partition in this. So we made porous partition. And same एक साइड जिंक आयंस का सॉल्यूशन जिसमें जिंक प्लेट डिप है, दूसरे साइड कॉपर आयंस का सॉल्यूशन
जिसमें कॉपर प्लेट डिप्ड है और इन दोनों प्लेट को वायर से कनेक्ट कर दिया। अब से इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट वाला सॉल्यूशन विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट वाला नेगेटिवली चार्ज, करेक्ट? यस यस सर। तो लेफ्ट वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो दूसरी ओर से नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर पुल करेगा, करेक्ट? यस सर। तो इस साइड से सल्फेट आयन इधर अट्रैक्ट होंगे, करेक्ट? हाँ सर। एंड सिमिलरली राइट वाले सॉल्यूशन की ओर, राइट वाला सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो रहा था, उसकी वजह से जिंक आयन इधर अट्रैक्ट होंगे, यस सर। करेक्ट? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बन गई, ओके? हाँ यस। और दिस इज अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन, क्योंकि हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्ट ब्रिज इज अ कॉस्टली डिवाइस, करेक्ट? So this is design of galvanic cell using a porous partition, ठीक है? बट इस डिजाइन में प्रॉब्लम क्या है? देखो, लेफ्ट वाला सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था तो वो नेगेटिव चार्जेस को दूसरी ओर से अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, ठीक है? यस। तो इसलिए सल्फेट उधर मूव कर रहे थे, लेकिन अब और कॉपर आयंस रिपेल होंगे, लेकिन पोरस पार्टीशन है, मतलब बीच में एक बाउंड्री है जिसमें होल है और ये सॉल्यूशंस में फ्लो होता है, तो थोड़े कॉपर आयंस तो उधर क्रॉस ओवर हो जाएंगे, बहुत कम लेकिन थोड़े तो चले ही जाएंगे। मैं बिल्कुल 100% ये इंश्योर नहीं कर सकता हूँ कि कॉपर आयन उधर जाएंगे, करेक्ट? हाँ सर। अब अगर थोड़े से कॉपर आयन इधर आ गए तो वो तो फिर सीधे जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, करेक्ट? यस सर। तो उतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वायर से कम हो जाएगा, हाँ। तो हमें वोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा एज कंपेयर टू सॉल्ट ब्रिज वाली डिजाइन। यस। तो ये सॉल्ट ब्रिज का तीसरा यूज लिखा था, ठीक है? यस सर आप वो आपने बोला कि वो Cu2+ वो वाले साइड पे जाके उधर से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उसके बाद एक बार बता सकते हो आपने क्या बोला? भैया अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए Cu+ ने तो ये तो हम हाँ सिचुएशन में आ गए ना। हाँ यस सर, टाइप ऑफ इनर्जी। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो Cu+ डायरेक्टली यहाँ से ले लेगा उतने इलेक्ट्रॉन वायर में कम जाएंगे। हाँ सर, तो कम करंट फ्लो होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर मैं आपका लास्ट पार्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, ये जो आपने जो कहा था ये इसके बारे में आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ये समझा नहीं मैं। यार यहाँ इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा था? जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही थी, कॉपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही थी। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट फ्लो कर रहे थे, वायर हमें करंट मिल रहा था। इस वाली डिजाइन में करंट क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि कॉपर सीधे जिंक की सरफेस से ही ले रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फिर इस वायर से थोड़े फ्लो करेंगे। अब अगर इस डिजाइन में थोड़े कॉपर यहाँ आ गए तो वो सीधे जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अच्छा
तो फिर वो वायर में फ्लो नहीं करेगा कम फ्लो करेंगे क्योंकि कॉपर थोड़े ही आ रहे हैं, बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। कि पोरस पार्टीशन है। अच्छा, थैंक यू सर, मुझे बस इतना ही डाउट था। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। सर जनरली कौन सा यूज करते हैं, पहला वाला या दूसरा वाला? है जनरल कौन सा वाला टाइप यूज करते हैं, वो सॉल्ट ब्रिज वाला या विदाउट सॉल्ट ब्रिज वाला? डिपेंड ऑन योर नीड। ओके। कॉस्ट इफेक्टिव है। अब 10 रुपए में बैटरी खरीदनी है तो सॉल्ट ब्रिज ही वाला थोड़ी नहीं यूज कर पाओगे। करेक्ट, यस सर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। okay. That today we'll stop here. There is some problem again and again on this screen. Okay. सर एक बार आप इसका भी वापस बता सकते हो, मैंने समझा मैकेनिज्म क्या बताया आपने? कैसा मैकेनिज्म देगा? तो वो कैसा हो रहा है? यार एक सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगा। यस सर। दूसरा नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर पुल करेगा। हाँ, बस और क्या इसके आगे क्या बताऊं मैं? सर्किट हो गया कंप्लीट। ओके ओके सर, यस सर। So, tomorrow's lecture be a regular lecture or doubt lecture? Tomorrow we will discuss volumetric booklet. Okay? Yes, sir. अब जो भी टेस्ट हुआ था उसके डाउट्स कब आप डिस्कस करेंगे? आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? कल पूछ लेना। ओके सर, मतलब सर एक दो क्वेश्चन में डाउट है, मतलब बाकी तो बहुत पेपर इजी था। कल लेना। ओके। हाँ, यस सर। Ask tomorrow in doubt lecture. ओके ओके ओके। So today we'll stop here. थैंक यू सर।